So for that, what we'll do, we'll look at a documentary, a smaller documentary of Amazon, which is made by Yahoo Finance. So we'll look at that, and then we will look at the infrastructure, internet infrastructure, right? The story of Amazon's empire is a perplexing one. On the one hand, it's killed off scores of bookstores, threatened almost every sector of small business retail, gotten its hands into everything from logistics to music to cloud services, and it's not stopping there. On the other hand, consumers have fallen in love with their low prices, convenience, along with the new standard of 2-day free shipping, which is sometimes even same-day shipping. And, let's not forget, they're putting out Emmy award-winning TV and Oscar-winning movies as well. So how did all this start? Back in 1994, a 30-year-old former high school valedictorian named Jeff Bezos was working at D.E. Shaw, a prominent hedge fund. One day while at the computer, he found a site that said the internet was growing at 2,300% a year. Up to that point, the internet was mostly used by the government and academics, but Bezos saw a game-changing opportunity: e-commerce. He started with a list of 20 potential mail-order products and landed on books. This is because the internet had a big advantage on mail-order catalogs. That is, it's actually possible to list all of the books on the internet without spending millions creating catalogs the size of a New York City phone book. With that in mind, he founded Amazon.com in Bellevue, Washington, in his garage, giving the fledgling business just a 30% chance of success. The company debuted officially in 1995, and the very first book sold was Douglas Hofstadter's Fluid Concepts and Creative. ये बुक सबसे पहला बुक जो या कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न ने सबसे पहले बुक बेचना शुरू किया, सबसे पहला प्रोडक्ट देखो क्या बिका है, फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजी, computer models of fundamentals. ये बुक अगर आप लोकल किसी स्टोर में, या मुझे नहीं लगता बिहार में मिलेगा, इंडिया में भी कहीं मिल जाए तो इट इज वेरी रेयर, बिकॉज आई थिंक द ऑथर डगलस हॉफस्टेडर इज आई थिंक अमेरिकन ऑथर. तो इस तरीके का निश प्रोडक्ट है ना, जो कि ऐसे नॉर्मली आप दुकान से दुकान भटकते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं, बट सबसे पहला यूसेज वहीं से है. क्योंकि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसको पता होता है कि पेन पॉइंट कहाँ है. यहाँ पे इन लोगों को पता था कि बुक जो है आसानी से मिलता नहीं, और ये भी उस जमाने की बात है ना. तो बिकॉज ऑफ पेन पॉइंट दैट एग्जिस्टेड, ही started the first product, the first vertical, the first business line Amazon went into was book, है ना. और आप बुक में गए और बुक में भी देखो सब बहुत एकदम पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पार्टिकुलर कैटेगरी का बुक जो है सबसे पहला बुक बिकने वाला है. Fundamental mechanisms of thought. The choice of book would illustrate Amazon's. बाकी बुक तो कोई कहीं से भी खरीद लेगा, जो बुक कहीं नहीं मिली उसके लिए आप जाते हो ना इंटरनेट पे. जो आपको कुछ चीज पहले ही पता होती है उसके लिए लोग नहीं जाते हैं. Genius concept, making everything, even the most niche of books, easy to find. Initial results were promising. Within just 2 months, sales at Amazon had reached $20,000 per week. In 1997, on May 15th, the company debuted on NASDAQ, going public at $18 per share. Amazon's early filings back then detailed a strategy that would mark its next 14 years. Quote, the company believes that it will incur substantial operating losses for the foreseeable future. In other words, Bezos and his company were all in. Amazon survived the dot-com bust of the 90s, which happened to kill off a lot of its competition, and by the end of 2001, it had made its very first profit, $5 million or 1 cent per share. The proof of concept had paid off. But Wall Street's irritation with the company's earnings would continue to be a recurring theme for Amazon. In 2013, Amazon earned way less than it had 5 years before, but it had tripled its sales. The company's lack of interest in profits and singular focus on growth led one commentator to call it, quote, a charitable institution being run for the benefit of consumers. Bezos took issue with क्या उन्होंने कहा कि किसी एक जो है इन्वेस्टर ने, जो इस कंपनी में इन्वेस्टर नहीं था बट वो बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट करता, उसने क्या कहा कि अमेज़न क्या है, ये उस जमाने की बात है 2000 के टाइम की, है ना. कहा कि दिस कंपनी इज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बीइंग रन फॉर बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स, है ना. यानी कि वो इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे थे, इतना ज्यादा सहूलियत दे रहे थे, इतना ज्यादा लोगों को अमेज़न से खरीदने पे इतना ज्यादा फायदा हो रहा था कि बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो लग रहा है कि चैरिटी चल रही है, इतना सस्ते में कैसे यहाँ मिला, वो भी घर बैठे प्रोडक्ट, है ना. तो ये जो है लोगों का खर्च, और कंपनी जो है बहुत प्रॉफिट में भी नहीं थी, क्योंकि आप इतना ज्यादा जो है
लोगों को डिस्काउंट दोगे अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो है आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट और ये जैसे आप अभी देख रहे, मतलब कुछ साल पहले देखते थे और अभी भी फूड डिलीवरी है ना 50% ऑफ, 60 ऑफ, सारी कंपनी लॉस में चलते रहती, तो अमेजोन भी ऑब्वियसली कभी उस टाइम पे थी. So with that, noting that he was taking a much longer view than irritated Wall Street analysts or other doubters. Investors, however, have seemed willing to stay the course, and Bezos himself probably has a lot to do. तो कंपनी जो है पहली बार प्रॉफिट में 2001 में, कंपनी खुलने के 6 बाद, तो 94 में तो लगभग 6-7 साल बाद जो है कंपनी को पहली बार प्रॉफिट हुआ, 6-7 साल. With that, in fact, Bezos' unique persona has driven the perception of Amazon's peculiar strategy, especially in its early days. Part of that had to do with his image. Despite being a digital company, he makes everyone on his senior team read a 6-page memo in silence on a topic before even discussing it in a meeting, a far cry from the standard corporate PowerPoint. Another part of it has to do with how he approaches things. For example, one time Bezos had a breakfast with the CEO of a company he was going to buy. When asked why he was interested in the company, Bezos compared it to an octopus that was on the menu. When I look at the menu, he said, "You're the thing I don't understand, the thing I've never had. I must have the breakfast octopus." While some questioned Bezos' strategy with Amazon, others saw his quirkiness as a visionary who could think outside the box. In retrospect, it makes sense. Look how the company has innovated. A lot of the stuff that you probably take for granted as standard practices for e-commerce actually started with Amazon. It popularized product reviews and email verification for orders, and it expanded offerings far past books. One of the most important innovations, besides being another bet on thin profit margins, was the introduction of free Super Saver shipping. In other words, Amazon was giving out free shipping for orders over $99, and consumers bought in. In 2005, Amazon added a twist to its business model when it launched Amazon Prime. The deal was simple: free 2-day shipping in the lower 48 states for just $79 a year. This is something that would prove pivotal to the company's strategy to get consumers to go all. पहले इन्होंने क्या किया कि आप कोई भी प्रोडक्ट $99, तो लेट से इंडिया करेंसी में लेट से 5,000 या 7,000 जो भी रेट होगा, तो उसे महंगा खरीदोगे तब फ्री होगा. तो एक बार लोग जो है वो उनके अंदर एक बिहेवियर शिफ्ट होना शुरू हुआ कि चलो अरे 100 रुपए 200 रुपया क्यों खरीदो, एक ही बार महीने का रुको और एक साथ ही महीने का जितना भी सामान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या कुछ खराब हो गया, कुछ नया लेना है, वो सब पूरा जो है हमारा कार्ट का वैल्यू अगर $99 से ऊपर है तभी लेंगे ताकि $3 में फ्री मुझे वो चीज मिलने लगे, फ्री शिपिंग का कोई चार्ज न लगे, डिलीवरी कॉस्ट न लगे. एक बार जब वो शिफ्ट हुआ तब कंपनी को समझ में आ गया कि वो ये लोग जो शिपिंग चार्ज बचाने के लिए अब ये लोग कुछ भी करेंगे. तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, प्राइम लॉन्च कर दिया. प्राइम में क्या होता है कि आपको हर जैसे इंडिया में तो आई थिंक 1,000 है, वहां पे जो है 4-5-6 मतलब $99 तो लोगों कितना हो गया, हाँ 6-7 हज़ार हो गया, तो वहां पे लोग ज्यादा देते हैं. तो वहां तो उन्होंने ऐसे लॉन्च किया कि आप $99 एक बार दे दो, उसके बाद आपको कितना भी महंगा या कितना भी सस्ता प्रोडक्ट होगा उसका आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको साल के शुरुआत में इतना दे देना है. और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बाद में ये लोग Amazon वीडियो और ये सब भी लाए. In on its business model. Soon after, the company launched Fulfilled by Amazon, which was something that blended third-party sales and Amazon's own sales by lending sellers the company's massive infrastructure. This third-party selling is the key to Amazon's business model, turning the company from an online store into a platform. For all of these business model innovations, more and more people became convinced that Jeff Bezos was playing a serious game of corporate chess. And look what happened. Do you see any Borders bookstores anymore? Any Virgin megastores, Tower Records, Circuit Cities? It's hard to say that Amazon killed them. है ना, तो वहाँ पहले सीडी की दुकान होती थी, किताब की दुकान होती थी, बहुत सारे रिटेल शॉप होते थे, वो सारे जो है बंद करवा दिए, बंद हो गए वो. जैसे कि एक ब्लॉकबस्टर करके वहाँ पे एक सर्विस थी अमेरिका में, इंडिया में तो नहीं थी. वहाँ पे 7-8 लोग या 10 लोग जो है जाके मूवी देख सकते थे ऑफ देयर चॉइस. तो जैसे नेटफ्लिक्स पॉपुलर हुआ वो सर्विस बंद हो गई क्योंकि लोग घर पे भी वो मूवी देख सकते थे. But there's no doubt that it was a factor. In 2007, Amazon launched its first major hardware product, the Amazon Kindle, going back to its bookish roots.
Just 3 years later, ebook sales on the platform had eclipsed hardcover sales for the first time. The mid-2000s were also an incredibly pivotal time for the company in many ways that people don't realize. This was when it dramatically invested in its B2B platform, rolling out its web services Simple Storage Service, or S3, along with other services which eventually evolved into its cloud computing giant AWS, or Amazon Web Services. By the early 2010s, Amazon had started to double down on its multimedia services, releasing Amazon Music and eventually Amazon Instant Video, its service for Prime. At the same time, it released the Kindle Fire, an inexpensive tablet and an easy way to get more people into its product ecosystem. That hardware was mildly successful, except for maybe the failed Fire phone, but nothing compared to the Echo and Alexa, which launched in 2014 as the very first voice assistant that was actually well received. It also represented innovation in how people buy stuff, which Amazon pioneered through dash buttons, one-click buying, which Amazon actually has a patent for, subscriptions, and more. This innovation also flowed into other parts of the e-commerce experience through Amazon lockers, access points, drone experimentation, and even going into people's homes. And for all of Amazon's reputation as an online giant, the company made a huge bet in the real-life retail space by getting directly into the supermarket business and paying $13.7 billion to buy Whole Foods in 2017. At this point, it seemed like the sky was the... 2017 में Amazon ने Whole Foods खरीदा और फिर उसके बाद क्या था, Whole Foods अमेरिका की कोई होगी, रिटेल की कंपनी होगी, और उसको काउंटर करने के लिए क्या हुआ आप लोगों को पता होगा, ठीक उसके अगले साल वॉलमार्ट, जो कि वहाँ की एक और रिटेल की कंपनी है, उसने इंडिया में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, just to counter it, right? The limit for Amazon, but not everything was perfect. The company's innovation has ventured into some more peculiar realms, with patents for wristbands that track worker moves in cage-like enclosures. The latter example was actually for worker protection in warehouses, and Amazon has said that even bad ideas get submitted for patents. But the outrage over them stems from very real problems that Amazon has had with labor. Articles have cited no air conditioning in 100-degree weather without fresh air, intense physical demands and difficult targets, and non-compete clauses for workers preventing them from getting jobs that competed with Amazon, which may be kind of everything. Even in the white-collar, non-warehouse part of the company, a 2015 report had one employee saying, quote, "Nearly every person I worked with, I saw cry." ठीक है, तो अब ये लोग जो है वहाँ के वर्क कल्चर का बता रहे हैं कि अमेज़न का जो वर्क कल्चर है काफी हेक्टिक है और देयर इज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि बहुत लोग रिजाइन करके एंड दे क्राई, वो रोते हैं कि हाँ मतलब वहाँ पे काम मतलब एवरी डे दे हैड टू क्राई बिकॉज इट इज सो लाइक सो मच एफर्ट इंटेंसिव, इतना ज्यादा वहाँ पे एफर्ट करना पड़ता है और वर्क आवर लंबे लंबे होते हैं, ब्रेक वगैरह कुछ नहीं होता, इस वजह से अब जो क्रिटिसिज्म, बट वो जो है हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बाहर की चीज है, सो वी विल नॉट go into it. You can always go and watch everything, but obviously the company is so big, so आप जो है काम तो effort तो expect करेगी. So I'm not taking anyone's side, but this was the growth story of Amazon कि कैसे वो लोग start किए, फिर उन्होंने टीवी के मतलब बुक से लेके फिर वो बाकी प्रोडक्ट्स में गए एंड देन फिर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दे वेंचर्ड इनटू फ्रॉम बुक्स टू ऑल द प्रोडक्ट, देन फिर वो लोग हार्डवेयर में आ गए, उन्होंने अपना रीडिंग डिवाइस किंडल लॉन्च किया एंड देन एलेक्सा जो कि एक वॉइस असिस्टेंट हार्डवेयर है उसको उन्होंने लॉन्च किया. So this was the story of Amazon, and now I think the overall introduction is there with you. Now you would have understood. अब हम लोग जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला जो चीज है वो होगा पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, है ना. Right. So packet switching is a method of slicing digital message into discrete units called packets, sending packets along different communication paths as they become available, and then reassembling the packets once they have arrived at their destination. है तो पैकेट स्विचिंग में कहता है कि होता क्या है कि जो भी आपका मैसेज है ना,
उस मैसेज को अलग अलग पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एंड देन वो पैकेट जो है फाइनल जो रिसीवर है वहां पे उसके डिवाइस में वो रीअसेंबल होता है, एंड देन दे रीड इट, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई मैसेज है ना, आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, ये कोई टेक्स्ट मैसेज है। अब ये टेक्स्ट जो है या वर्ड की जो भाषा है वो हमारा आप समझते हैं, कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, कंप्यूटर तो नंबर समझता है, तो उसको क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्स्ट मैसेज गेट्स डिजिटाइज्ड इनटू बिट्स, ठीक है। अब वो बिट को भी ब्रेक कर दिया जाता है ना, तो दे आर सेवरल बिट्स, डिजिटल बिट्स आर ब्रोकन इनटू पैकेट। अब पैकेट इस तरीके से ब्रेक किया गया है कि हर पैकेट पे एक हेडर इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और हेडर इंफॉर्मेशन क्या क्या है, हेडर इंफॉर्मेशन में वो सारी बात जो इस मैसेज से रिलेटेड है, जैसे कि कितने सारे पैकेट हैं, हर पैकेट में कितना बिट है ना, सच एज हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द टोटल मैसेज एंड हाउ मेनी पैकेट। तो ये हर एक पैकेट में इस पूरे मैसेज को ब्रेक करके कई सारे पैकेट बनाए गए, हर पैकेट में इंफॉर्मेशन है कि ये जो है इसका डेस्टिनेशन है ना, हेडर इंफॉर्मेशन एडेड टू ईच पैकेट इंडिकेटिंग द डेस्टिनेशन, यानी कि ये मैसेज किसको जाना है, इस मैसेज में कितने पैकेट्स हैं और कितने बिट्स हैं, ये सारा डिटेल हर एक पैकेट में होगा, ठीक है। और इस तरीके से ब्रेक करने का क्या फायदा है, ये हम देखेंगे टीसीपी में, प्रोटोकॉल में, कि कैसे हेल्प करता है। आप देखते हैं कि ये फंक्शनिंग, हाउ डज इट फंक्शन। तो हम पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं कि मैसेज को पैकेट में ब्रेक करके आगे बढ़ाते हैं, कैसे होता है। तो इट in packet switch networks, messages are first broken into packets. Appended to each packet are digital codes that are indicate a source address, है ना। source address मतलब मैसेज कहाँ से निकल रहा है, वो source address हुआ, that's the origination point, and the destination address as well as the sequencing information and error control information of the packet, है ना। तो एक header information जो मैं बोला था कि हर एक पैकेट के साथ अटैच कर दिया जाएगा, मैसेज कहाँ से आ रहा है, मैसेज कहाँ तक जाना है और क्या क्या डिटेल है, ठीक है। इस हिसाब से वो ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद rather than being sent directly to the destination address in a packet network, the packets travel from computer to computer until they reach their final destination. These computers are called routers, है ना। तो कह रहा है कि सीधा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं आता है, राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन होता है। तो एक राउटर से जब जो भी मैसेज है वो निकला, इट विल रीच टू अनदर राउटर, देन इट विल बी असेंबल्ड एंड देन जो क्लाइंट का जो सिस्टम है वो उसको रीड करेगा। तो ये राउटर इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट इंटरकनेक्ट the different computer networks that make up the internet and routes packet along with their ultimate destination as they travel, है। तो राउटर भी जो है एक तरीके का कंप्यूटर है। अब क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर जितना महंगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें रैम की आवश्यकता नहीं है, उसमें हार्ड डिस्क, उसमें प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल को, वो सिर्फ जो है नेटवर्क इनेबल करने वाला कंप्यूटर, उसको सिर्फ नेटवर्क से मतलब, उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती नहीं है। सो इट्स वेरी अवेलेबल चीपली 1000 2000 में, ठीक है ना। तो क्या करता है वो, interconnect the different computer networks and make up the internet and route packets along with their ultimate destination, है। तो जहां से भी आया उसको उस मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। to ensure that packets take the best available path forward towards their destination, routers use a computer program called routing algorithm, है ना। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जहां मान लिया जिस पाथ में कंजेशन है उसको छोड़ के जो सबसे ज्यादा सबसे स्मूथली चल रहा है, जो राउटर वो डायरेक्शन लेता है। और ये ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि देयर इज अ राउटिंग एल्गोरिथम व्हिच हेल्प्स इट इन चूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और यू कैन से द बेस्ट अवेलेबल पाथ टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, है ना। तो एक मैसेज जो क्लाइंट के सिस्टम से निकल के जो है या सर्वर के सिस्टम से निकल के क्लाइंट के सिस्टम पे जाना है, दैट इज मेड पॉसिबल थ्रू राउटर, राइट। राउटर इज ऑब्वियसली a physical device. So this was the functioning of packet switching, right? Packet switching technology, how does it work, how does it break the message, ठीक है। एंड अब जो है हम बात करते हैं TCP IP। ये सब आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, आई थिंक इन द प्रीवियस ईयर, बट स्टिल वी विल सी। सो TCP IP, अब TCP IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, इससे पहले कि मैं बात करूं TCP क्या है, प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मतलब होता है इफ दिस देन दैट,
है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया की बहुत फ्रेंडली कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर को जो है गले मिलने के लिए वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ के चले आते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये हुआ कि अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो उनके आगे 4 बॉडीगार्ड रहेंगे, पीछे 10 बॉडीगार्ड रहेंगे। सिक्योरिटी इस चीज का ध्यान रखेगी कि वो अगर किसी को गले मिल रहे हैं तो वहां पे कोई डेंजर तो ना हो। ये प्रोटोकॉल है कि अगर आपने ऐसा किया तो वैसा होगा, है ना। इफ दिस देन दैट, है ना, विच इज जस्ट लाइक आई मीन प्रोग्रामिंग कमांड, और हर चीज में एप्लीकेबल है ना। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म, है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ, एंड इफ यू गो टू रेलवे प्लेटफॉर्म विदाउट एनी प्लेटफॉर्म टिकट, विदाउट एनी अदर काइंड ऑफ ट्रेवल टिकट, देन फाइन। सो इफ विदाउट टिकट देन गिव फाइन, है ना। ये भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है। रोड पे आप जा रहे हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो यू हैव टू पे फाइन, आपको जो है फाइन देना पड़ेगा। सो इफ यू डू दिस देन यू विल हैव टू डू दैट, और देन समथिंग एल्स विल हैपन। तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है सिंपली रूल। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, ऑब्वियसली अब टीसीपी आईपी जो है वो कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करेगा। तो टीसीपी आईपी हैज बिकम दी कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, है ना। तो इसमें क्या रूल है? अभी तक तो मैंने बताया आपको जो है सिक्योरिटी का बोला, फिर मैंने आपको रोड का बताया। तो यहाँ पे इफ दिस देन दैट क्या क्या नियम है? कहता है कि टीसीपी एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन अमंग सेंडिंग एंड रिसीविंग वेब कंप्यूटर्स एंड मेक्स श्योर दैट पैकेट सेंट बाय वन कंप्यूटर आर received in the same sequence by the other without any packets missing, है ना। तो यहाँ पे if this then that क्या है कि जिस सीक्वेंस में आया, है ना, अगर जिस सीक्वेंस में मैसेज आ रहा उसी सीक्वेंस में जो है हमने बढ़ाया विदाउट एनी पैकेट मिसिंग, तो ये कम्युनिकेशन पूरा होगा। अगर जो है कोई पैकेट मिस हो रहा है देन कम्युनिकेशन विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये है टीसीपी का प्रोटोकॉल। और आईपी क्या करता है? आईपी जो है एक एड्रेस देता है ना। एड्रेस मतलब जैसे एक, और ये हम आगे देखेंगे कि डीएनएस और आईपी एड्रेस में क्या, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस में क्या कनेक्शन है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि बोरिंग रोड है। अब बोरिंग रोड का एक तो नाम भी है बोरिंग रोड, और उसका जिप कोड भी है 8,01,000, है ना, 80। तो जिप कोड इज लाइक आईपी एड्रेस और एंड द वर्ड बोरिंग रोड इज लाइक अ डोमेन नेम, है ना। तो कह रहा है कि आईपी प्रोवाइड्स the internet addressing scheme and is responsible for the actual delivery of packet, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर आता है ना, तो आपको अपना पिन कोड डालना पड़ता है। तो वो जो पैकेट की डिलीवरी होती है उसके लिए आपको जिप कोड देना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे इंटरनेट पे कोई मैसेज जो है एक जो है वेबसाइट से जाना है, उस पे आना है, तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ आईपी एड्रेस। जैसे यहाँ पे जिप कोड की आपको जरूरत पड़ेगी, वैसे वहाँ पे आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। दैट विल बी दी नीड। सो आईपी प्रोवाइड्स दी इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम। अब जो है राउटर को देखते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो कहता है कि यहाँ पे सेंडर के कंप्यूटर से, है ना, ये मैसेज निकलती है कि मुझे इसको देना है और मेरा सिस्टम ये है। सो टू और फ्रॉम, जैसे एक लेटर में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पहला स्टेज टीसीपी आईपी ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट। जो डेटा है, मैंने अभी पैकेट स्विचिंग में बताया, जैसे पैकेट बनता है अलग अलग मैसेज को तोड़ के, वैसे बना। फिर राउटर टू राउटर जो है मैसेज गया, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जिसमें कोई कंजेशन नहीं है, जो सबसे तेज चल रहा है, वो वाला पाथ खोलेगा। द पैकेट ट्रेवल फ्रॉम राउटर टू राउटर ओवर द इंटरनेट एंड देन TCP IP reassembles the packet into original code, है ना। जो फिर रिसीवर के सिस्टम पे जो है वहां पे उसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि ब्रेक कर रहा है, जो प्रोटोकॉल ब्रेक करने में यूज हो रहा है, उसी प्रोटोकॉल से जो है वापस मैसेज को असेंबल करके रेसिपिएंट को बता दिया जा रहा है कि मैसेज भाई यहाँ से आया है और ये आपको मैसेज कर रहा था, ये मैसेज है, ठीक है। सो this is about the TCP IP, and more detail I think you would have I mean slightly more detail is obviously the part of, not part of e-commerce, but आप लोगों ने sorry, I think there was some network issue. I think we are back. Let me switch.
तो अब हम जो है डीएनएस का बात करें थोड़ा, एंड बिफोर वी कंक्लूड। तो कहता है कि डीएनएस है ना, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में बोलता है कि एन आईपी एड्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेचुरल लैंग्वेज कन्वेंशन कॉल्ड डोमेन नेम, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि जो वर्ड्स की भाषा है ना, www.this.com, ये हम और आप इंसान जो है समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो नंबर समझता है, कंप्यूटर जो है वो डिजिट समझता है। तो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बात कर पाए, इसके लिए जो है हर एक डोमेन का एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, है ना। तो the domain name system allows expressions such as cnet.com to stand for a numerical IP address, है ना। तो cnet का कुछ होगा IP address like something like, है ना, 101.23. जो भी है इस टाइप का कुछ है, उसका IP एड्रेस होगा, ठीक है, जिसको कि आप इंटर करोगे तभी cnet.com ही खुलेगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो है वो एक डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम को एक न्यूमेरिकल एड्रेस देता है। अब यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, राइट, व्हिच इज द एड्रेस यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ कंटेंट ऑन द वेब। अच्छा, आई थिंक एक चीज हम लोगों ने कर दिया, yeah, I think we missed the layers part. I'll go back again to that. So TCP IP में जो हमारा लेयर मिस हो गया था, we'll look at it and then we'll go back. So कहता है कि 4 अलग अलग लेयर होते हैं, है ना। यहाँ पे नेटवर्क लेयर, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, है ना, कि कहीं पे आप रोड पे हो और आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो पुलिस वाला चेक करके जो है आपका वो फाइन कर देता है, सो ऑन सो फोर्थ। अब ये चीज होने में, इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने में कई सारे लेयर है ना। एक लेयर तो क्या है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दूसरा उसके बाद अगला लेयर कौन सा है कि भाई पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन से लेके ये कानून है, ये दूसरा लेयर। तीसरा लेयर कौन है? वो पुलिस वाला जो आपको पकड़ के चेक कर रहा है ना। तो जैसे इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, कि कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेवल कर रहा है, क्राइम है, उसको फाइन उस पर लगाना है। इस प्रोटोकॉल को जैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे लेयर हैं, उसी तरीके से टीसीपी को भी इम्प्लीमेंट करने के कई सारे लेयर हैं, ठीक है ना। और हर लेयर का अपना काम है, ठीक है ना। जैसे कि वहां पे लॉ बना, अब उस लॉ को इससे मतलब नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस कौन बन सकता है ना। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सब लेयर का अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरीके से यहाँ पे भी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेटवर्क लेयर का क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर प्लेसिंग पैकेट ऑन एंड रिसीविंग देम, है ना। इस नेटवर्क लेयर का क्या काम है कि जो पैकेट ब्रेक हुआ उसको सिर्फ प्लेस करना है, रिसीव करना है। कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इससे उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ रिसीव करना काम है, और या तो मैसेज को जो विच इज ब्रोकन इनटू पैकेट उसको वहां पे प्लेस करना है। दैट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज। इंटरनेट लेयर का क्या काम है? ये एड्रेस देता है ना। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग पैकेजिंग एंड राउटिंग मैसेज ऑन द इंटरनेट, है ना। तो मैसेज को इंटरनेट पे राउटिंग करना, यानी कि सबसे अच्छे मतलब सबसे फास्टेस्ट पाथ पे भेजना, और उस मैसेज को एक एड्रेस देना कि भाई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो चीज इट इज देयर। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन विथ द एप्लीकेशन बाय एक्नॉलेजिंग द एक्नॉलेजिंग एंड सीक्वेंसिंग द पैकेट्स टू एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन, है ना। तो जो पैकेट्स है उनका सीक्वेंस को कौन इंश्योर करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। और सबसे लास्ट में कौन है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो जिससे हम और आप इंटरेक्ट करते हैं ना। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन विथ एबिलिटी टू एक्सेस दी सर्विस ऑफ लोअर लेयर, है ना। कई सारे पॉपुलर एप्लीकेशन लेयर है ना, HTTP हुआ और FTP हुआ। FTP ऑब्वियसली फाइल को वेबसाइट पे अपलोड डाउनलोड करने के लिए। SMTP किसी होता है कि मेल सर्वर में ना, मेल वगैरह भेजने के लिए आपको SMTP प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। सो दीज आर दी 4 लेट्स से यू कैन थिंक दीज आर दी 4 लेयर इन TCP/IP, एंड सबका अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And then now we look at again towards the DNS side.
तो मैंने बोला कि यूआरएल क्या होता है कि यूआरएल बेसिकली आईपी एड्रेस का एक वो है। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर व्हिच इज एड्रेस यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ कंटेंट ऑन द वेब, आल्सो यूजेस डोमेन नेम एज पार्ट ऑफ यूआरएल, है ना। तो यूआरएल क्या होता है, जो वेबसाइट का एड्रेस है जो कि चाहिए, है ना, ब्राउजर को। फॉर एग्जांपल इस पेज का क्या है यूआरएल, prezi.com p/edit drp फलाना फलाना फलाना, है ना, इस तरीके का उसको बोलते हैं यूआरएल, ठीक है। और नाउ वी लुक एट व्हाट इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम का हायरार्कियल जो वो है। तो रूट सर्वर में, है ना, जैसे कि यही वेबसाइट कहीं पे किसी कंप्यूटर में रूट सर्वर में होगा, तो उसने उस सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रेजी का ही होगा, हो सकता है कि हाँ, अगर प्रेजी का डेडिकेटेड सर्वर है तो ऑब्वियसली सिर्फ .com ही होगा। बट मान लो कि प्रेजी ने जो है शेयर्ड सर्वर लिया है ना, कि जिसपे बाकी कंपनी भी होस्ट करती है, तो बाकी कंपनी का तो .com नहीं रहेगा, हो सकता है किसी का .edu हो सकता है गवर्नमेंट वेबसाइट हो, .gov भी रहेगा, मिलिट्री का होगा, है ना, .net रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, .org, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, यूएस। तो अलग अलग तरीके के वेबसाइट का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। रूट सर्वर में जो है जो एक्सटेंशन है उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल .com वाले में ही AOL.com आएगा और GM.com आएगा, एडू वाले में NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड.edu, है ना। तो हर एक जो एक्सटेंशन है उस हिसाब से जो है बाइफर्केशन किया रहता है ना। और उसके बाद भी है, उसके बाद भी NYU में भी उससे पहले भी लग सकता है ना। यहाँ पे भी verizon.net वेबसाइट है तो उससे पहले भी mail.verizon. और हमने भी ये किया है ना, ये बात मैं बोल रहा हूँ कि a URL can have 2 or more part, है ना, name1.com, name1.name2. name3.org, है ना। तो आप वेबसाइट का जो डोमेन है उससे पहले भी एक सब डोमेन लग सकता है, जैसे कि मैंने आप जो बनाया था हम लोगों ने वेबसाइट, तो मेरा जो ब्लॉग है officialrahul.com उसका एक सब डोमेन है ना, तो इस bca.com का भी एक मैं सब बना सकता हूँ, उसका भी सब बन सकता है ना। सो कहने का मतलब ये है कि देयर कैन बी several other parts that we can add, right? So कह रहा है कि a URL can have 2 to 4 parts, right? तो इतना आप चाहो तो 3 और लगा सकते हो, है ना। तो ये जो है हमने डीएनएस का देखा। आदित्य इज ट्राइंग टू। Yes, I have one question, sir. Questions हाँ, है मेरे पास. Sir, what are the key things to turn browser into wires? turn browser into Wires. BUYERS. What are the key things to turn browser into wires? browser, or you're asking about browser, web browser? Yes, sir. वेब ब्राउजर बायर कैसे हो सकता है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, राइट? तुम वेब विजिटर बोल रहे हो क्या? Yes, sir. अच्छा, तुम ये पूछना चाह रहे हो कि कोई जो हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है वो Yes, उसको खरीदने के लिए हम कैसे वो कंपेल कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो आप जैसे एक तो मैंने जब करवाया था डिजिटल मार्केटिंग, मैंने बोला था कि जो ब्राउजर है ना, आप ये सिस्टम रख सकते हो कि उसके जो यूजर है उसके ब्राउजर में कैश, इट विल कुकीज एंड कैश जो है उसके ब्राउजर में रह जाएगा, और जो प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे है वो उसको हर जगह। अब देखो, अगर आपको ये करवाना है तो आपको पैसे भी स्पेंड करने पड़ेंगे, तो आप या तो गूगल एडसेंस या तो फेसबुक जो एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है उनका आप सहारा लो। तो उसके बाद जो है उनको जो भी वेबसाइट, जो भी ब्लॉग या जो भी न्यूज का आर्टिकल, न्यूज वाले मोस्टली ऐड चलाते ही रहते हैं, हर जगह उनके ऐड ही चलते रहते हैं, तो उनको जो है आपके वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके ब्राउजर में कुकी वो डेटा रख चुका है कि ये बंदा इस वेबसाइट के प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है, तो उसको उससे रिलेटेड ऐड। तो सर एक क्वेश्चन और है सर, तो हाँ, ये सब तो ठीक है, तो क्या सर ये सब करने के बाद ई कॉमर्स इज प्रॉफिटेबल? यस, ई कॉमर्स इज प्रॉफिटेबल, अमेजॉन इज प्रॉफिटेबल। अमेजॉन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल, एप्पल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। अमेजॉन का मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। मतलब इंडिया को कोई अगर चाहे तो पूरा बाई आउट करना वो उसके लिए आसान है, लेकिन अमेजॉन को एक्वायर करना मुश्किल है। एप्पल का भी ज्यादा है। सऊदी अरेबिया में कंपनी आरामको
वो तेल की कंपनी है, उसका भी मार्केट कैप ज्यादा इंडिया की जीडीपी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन हाँ शुरू में आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। और आप इफ यू लुक एट कंपनीज लाइक उबर, इफ यू लुक एट कंपनीज लाइक जोमेटो, उनको तो आज तक सर प्रॉफिट नहीं हुआ। तो सर इसका पेमेंट सर कैसे आता होगा सर? डिस्काउंट जब करते होंगे तो सर हाउ कैन यू टेक क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अक्रॉस द नेट? हाँ तो डिस्काउंट की तुम बात करो कि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट में कैसे है। यस सर। तो डिस्काउंट देखो बाबू, जो सामान तुम खरीदते हो ना 100 रुपए में, उसको जैसे एक भले ही तुम लोगों को पता नहीं हो, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। 10 रुपए का या अभी तो 15 रुपए का मिलता है कोको कोला का, जो कांच वाला है। उसको बनाने में कोको कोला को सिर्फ 50 पैसे लगते हैं। 50 पैसे लगते हैं सिर्फ वो कोल्ड ड्रिंक बनाने में, और बेचता कितने में? वो 15 रुपए में। लेकिन उसका इतना ज्यादा मार्केटिंग का कॉस्ट है ना, सारे वो किराना वालों को उसको फ्रीज देना, ये सारा कॉस्ट है ना, इस तरीके का एक नेटवर्क इफेक्ट देना कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ना ये दुकान वाले के पास तो कोक हुआ है। या इसी तरीके का पैरेलल चेन पेप्सी का है, थोड़ा बहुत इंडिया में पार्ले एग्रो का है, जिसका मजा वगैरह आता है। तो कहने का मतलब कि आपको उस प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लेयर, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे जो है स्टेजेस में स्पेंड करना पड़ता है। मार्केटिंग आपको जो है ब्रांड एवेयरनेस चाहिए, टीवी पे ऐड चलना चाहिए, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट है ना, पेप्सी जो आईपीएल का ऐड करता था, लीड स्पॉन्सर था। तो ये सारा पैसा इतना खर्च करना पड़ता है कि 50 पैसे की चीज जो है वो 15 रुपए में कस्टमर को खरीदनी पड़ती है। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है कि यूजर जो है किसी दुकान में नहीं जाता है, वो एक वेबसाइट पे जाता है, अमेजोन जैसे वेबसाइट पे, जिसके पास अपना वेयर हाउस है, जहाँ पे फैक्ट्री से माल बन के सीधा उसके वेयर हाउस में जाता है। तो बीच का जो जितना सारा लेयर है ना, होलसेलर जो 10% होलसेलर ले रहा है, 15% डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है, दुकान वाला अपना मार्जिन ले रहा है, ये सारा मार्जिन खत्म हो जाता है और यूजर को डिस्काउंट मिलता है। लेकिन तो अगर सर इसका आपको पर ईयर सर ग्रोथ रेट कितना होगा सर इसका मार्केटिंग का? ई कॉमर्स का ग्रोथ रेट अभी भी इट इज वेल बियॉन्ड 15 to 20%, अभी भी 15-20% से ग्रो हो रहा है। और मोबाइल वाला 30% से ग्रो कर रहा है। तो मोबाइल एम कॉमर्स जो है इट इज ग्रोइंग वेरी मच रैपिडली। तो तो सर हाउ क्योंकि ग्रोथ, यस सर नो सर प्लीज हाँ तो कंटिन्यू। मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये ग्रो बहुत जल्दी से हो रहा है, इसीलिए लोगों को होप है कि कंपनी भले ही लॉस में चल रही है, लेकिन क्योंकि पूरा जो बिहेवियर है वो पूरा, अभी आप लोग को दिखता होगा कि 10-12 साल पहले मॉल में, शॉपिंग मॉल्स में जितनी भीड़ होती थी उससे अब थोड़ी कम होती है ना। क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि लोग को मिंत्रा और इन सब चीजों पे जो है काफी डिस्काउंट और अलग अलग सेल के ऑफर जो है फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। तो देयर इज नॉट मच रश ओवर देयर। तो इस वजह से वो कंपनी अफोर्ड कर पाती है सस्ते में देना। लेकिन जब कंपनी शुरू होती है तो उसको अपने है ना 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपया खर्च करना पड़ता है, 2 रुपया खर्च करना पड़ता है, 3 रुपया भी खर्च करना पड़ता है। इवन आप लोग जानते हो कि एक कंपनी है क्रेड, जिसका कि आईपीएल में ऐड आता था, वो 64 करोड़ रुपया उसने खर्च किया एंड हार्डली 1-2 लाख उसने अर्न किया, बट स्टिल इट इज वर्किंग। यस गुलशन। हेलो सर। यस सर कह रहा था सर, मतलब एक तो ई कॉमर्स है और एक काफी चलता है ड्रॉप शिपिंग। हाँ सर तो ड्रॉप शिपिंग में तो सर उतना वेयर हाउस ये सब वगैरह ये बिल्ड नहीं करना पड़ता है, तो वो सारा ड्रॉप शिपिंग ओके, उसके बारे में थोड़ा सर एक्सप्लेन कर देते हैं। ड्रॉप शिपिंग इज आई थिंक आपको अपना एक शॉपिफाई या कि एक अलग स्टोर मेंटेन करना पड़ता है, जहाँ पे कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो। वो प्रोडक्ट आपके पास भी नहीं होता है। एंड सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ड्रॉप शिपिंग में यू नीड टू हैव अ वेबसाइट, आई मीन ई कॉमर्स पोर्टल, और उस पर आपको लिस्ट करना है प्रोडक्ट। एंड वो प्रोडक्ट जो है किसी वेयर हाउस में है, आपके थ्रू सिर्फ होगा ये कि बायर जो है उस वेयर हाउस का जो ओनर है या जो कंपनी जहाँ पे उसको स्टोर करिए, आपके वेबसाइट के थ्रू उसको मैसेज चला जाएगा और आपका जो है 4-5% मिलेगा। आई थिंक ये जो आप बोल रहे हो ना ड्रॉप शिपिंग में जितना मार्जिन है ऑलमोस्ट उतना ही मार्जिन जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग में होता है। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप लोग जो टीवी पे या फिर यूट्यूब पे रिव्यू देखते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप मेरे लिंक से खरीदिए, तो 4-10% का उसका एफिलिएट होता है। तो बिल्कुल उसी टाइप का है
लेकिन जो मार्जिन है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, लेकिन हाँ आपको एक पोर्टल वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, and through Shopify we do it. So if more numbers are interested, I can also explain how to, I mean, build a Shopify website. बाहर में लोग बहुत ज्यादा ये सब करते हैं, इंडिया में तो I don't think there is much culture about it. इससे बहुत सारा सक्सेसफुल मॉडल इस पे चलता है सर आज भी। हाँ, and I think it was very much successful in the past. बहुत पहले जो है बहुत like people have made millions and millions out of this, but अब सर हर चीज में जैसे जो competition बढ़ गया फैशन है। ब्रांड जो कुछ करके जो लेडीज है कोई मतलब कॉस्मेटिक आइटम्स का ऐसा मतलब ऐसा ब्रांड है जो मतलब काफी वैल्यूएबल कंपनी आज के डेट में बन चुका है, और सिर्फ वो शॉपिफाई और करके ऐसे बना हुआ है ड्रॉप शिपिंग पे। जस्ट दे मेंटेन अ पोर्टल एंड उसके बाद से बिल्कुल एक उसमें ही है माई स्मार्ट प्राइस करके, आई थिंक इट्स देयर और नॉट देयर, आई एम नॉट श्योर, बट उससे क्या होता था कि उस दिन प्रोडक्ट का सबसे चीपर वेरिएंट जो है वो अवेलेबल होता था। आई कैन मतलब किसी पार्टिकुलर नीड पे काम करेगा। यस I think we are lost. So I think we can discuss on Shopify and जो drop shipping का business model है. I think it's not very much related to e-commerce, but then again, आदित्य कुछ पूछ रहे? Yes, आदित्य. सर मैं बोल रहा हूँ सर एक क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज योर टेक ऑन ट्रैफिक कैंपेन्स फॉर अ स्मॉल ब्रांड्स with a few $1,000 monthly ad spend and high ticket pricing handmade product. सर इसके ऊपर सर आपका थिंकिंग क्या है सर? नहीं, तुमने पहला लाइन क्या बोला, मैंने सुनाई दिया, ट्रैफिक कैंपिंग क्या कुछ? हाँ, कैंपिंग CAMPAIGNS। अच्छा, कैंपिंग नहीं, इसको कैंपेन बोलते हैं। सो इस पर सर आपका थिंकिंग क्या है सर? हाँ, तो स्मॉल कोई जो कंपनी है, मान लिया कि एड स्पेंड $1,000 है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और इसी को रिपीट कर देता हूँ फिर से। व्हाट इज योर take on traffic campaigns for a small brands with a few $1,000 monthly ad spend and high ticket pricing handmade products? सर इस पर आपका थिंकिंग क्या है? हाँ, तो देखो, ये तुम क्या बोल रहे हो कि कोई छोटी कंपनी है जो $1,000 यानी लगभग इंडियन करेंसी में 60 से 70 हजार रुपए खर्च करना चाहती है, हाई टिकट प्राइसिंग यानी कि महंगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रही है, तो ऐसे केस में अगर एड स्पेंड ज्यादा नहीं है तो आई थिंक उनको क्या करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड मेलचिम्प है ना। तो इस पे क्या है कि बल्क में मेल जाता है। तो व्हाट दे शुड डू कि अगर $1,000 ही उनका पर मंथ स्पेंड करना है और उनको ट्रैफिक कैंपेन मतलब ट्रैफिक और चाहिए, तो व्हाट दे शुड डू इज, आई थिंक ईमेल मार्केटिंग विल बी द बेस्ट, क्योंकि ये काफी सस्ता है एंड आज के डेट में भी 10 से 15% जो है जो अगर 100 मेल खोले जाते हैं तो 10-15 मेल उसमें से लोग जो है ओपन करते हैं कि मैसेज क्या है। सो अगर जो स्पेंड है मतलब $1,000 ही हर महीने खर्च करना है, तो आई थिंक फेसबुक मार्केटिंग से ज्यादा बेटर, मतलब अगर आपको चाहिए अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक, तो आई थिंक मेलचिम्प या कोई और आई थिंक Aweber करके एक और है मतलब ईमेल मार्केटिंग का, तो आई थिंक अगर खर्च करने का बजट ज्यादा नहीं है तो क्या सर इससे कंफर्म होता है कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा? सर हाउ डू आई टारगेट कस्टमर्स इन अ नाइस मार्केट? निश मार्केट मैंने, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको लीड, जैसे मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया था, तो एसईओ में मैंने आपको कुछ लीड मैग्नेट पढ़ाया था। लीड मैग्नेट के थ्रू आई एम नॉट श्योर आपको पढ़ाया बीबीओ वालों को, तो उनको मैं लीड मैग्नेट पढ़ाया था। लीड मैग्नेट में होता क्या है कि आपको जो है फ्री में आपको चीज देते हो, आप फ्री में कोई ट्यूटोरियल देते हो, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको लीड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आप फ्री ई बुक कह सकते हो कि हमारी वेबसाइट से है ना एक फ्री ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि लेट्स से लेटेस्ट क्लॉथिंग ट्रेंड या कोई मैगजीन जो है जो आपकी आती होगी, है ना। आपको एक पैरेलल में फ्री मैगजीन, आई थिंक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड स्टॉक बाय लव, वो अभी बंद हो गया है, बट इट वाज इनटू वुमेन अपैरल, वो लड़कियों के कपड़े बनाता था वो, उसका अपना एक मैगजीन था ना। तो लोग वो मैगजीन पढ़ने के लिए अपना ईमेल दिए,
अब ईमेल इतने 1 लाख 1.5 लाख लोगों का ईमेल लिस्ट हो गया उसके पास, अब वो बराबर जो है जब भी डिस्काउंट आएगा या जब भी नया प्रोडक्ट आएगा तुमको मेल फटाफट, तो क्योंकि आपके पास सिर्फ क्या हुआ? तो क्या सर आप कोई टिप देना चाहते हैं? डू यू हैव एनी टिप टू इंक्रीज माय कन्वर्जन रेट्स? आई थिंक यू शुड फोकस ऑन लीड मैग्नेट। आई थिंक आपको जो है टारगेट करना चाहिए बिल्कुल डायरेक्टली उसी टाइप के लोग जो कि ले सकते हैं। एक तो फिर मतलब फेसबुक अगर कर रहे हैं तो फेसबुक से ज्यादा आसान है फेसबुक से किसी को टारगेट करना, क्योंकि आप जान रहे हो ना आपका कॉम्पिटिटर कौन है। फॉर एग्जांपल आपका मान लिया वो प्रोडक्ट है, तो आप जो है कीवर्ड जैसे जेबोंग, जैसे मिंत्रा, जैसे कि और कोई खूब्स या जो भी जो कपड़े थोड़े महंगे कपड़े बेचता है ऑनलाइन, उसको आप कीवर्ड एज ए कीवर्ड टारगेट कर दोगे, तो जो लोग उसके उन सब के पेज लाइक किए हैं उन सबको आपका ऐड दिखने लगेगा। So this will be my tip that if you are promoting on Facebook, you should target your competitors' keywords. Okay sir, तो क्या सर how do you use loyalty alongside your discounts? लॉयल्टी आई थिंक वो आपको पेमेंट गेटवे पे जैसे फ्लिपकार्ट पे आई थिंक 2 कॉइन 1000 रुपया 100 रुपया खर्च करने में मिलता है, उस टाइप का आपको कुछ देना पड़ेगा। दैट विल बी बिकॉज फिर कॉइन एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना, तो फिर लोग इसीलिए खर्च करते रहते हैं ताकि उनको लगता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपने 1 लाख 1.5 लाख खर्च किया तो आपको माइल्स मिलते हैं, फिर आप फ्लाइट का टिकट फ्री में कटा के कहीं से कहीं जा सकते हो उतने माइल का। तो उसी तरीके से यहाँ लॉयल्टी में हुआ कि आप मान लिया किसी ने 5,000 का ड्रेस खरीदा, 2,000 खरीदा, तो आप उसको जो है 7 या 8 या 10 या 20 लॉयल्टी पॉइंट दे दो, और फिर उनको दिख जाएगा कि हाँ भाई अब मेरे पास 200-300 पॉइंट हो गया है, अब मैं इसका कुछ खरीद सकता हूँ। तो इससे क्या है कि लोग बार बार आते रहेंगे क्योंकि उनको हर बार शॉपिंग पे कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, एंड देयर विल बी अ साइकिल दैट विल बी गोइंग ऑन एंड ऑन। ठीक है, सो आई थिंक I have explained you quite a bit, and I think next lecture का जो है टाइम हो गया, so I'm taking attendance. We can discuss on Shopify and all those things later on.